نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو آپ کو آج کا پہلا روزہ اور رمضان مبارک کا مہینہ مبارک ہو۔ آج ارادہ تو اگرچہ رمضان مبارک کے اوپر گفتگو کرنے کا تھا، لیکن کل رات ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ سوچا کہ پہلے اس پر گفتگو کی جائے، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے آج کا روزہ خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پر بات کرنا اور اس کی مذمت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ میں آج بڑی کھل کے بات کروں گا اور کوئی چیز مبہم نہیں رکھوں گا، کوئی چیز خفیہ نہیں رکھوں گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے کچھ کہا، میں کلیئر بات کروں گا انشاءاللہ۔ آپ پوری گفتگو توجہ سے سنیے گا۔ کل 29 شعبان المعظم تھی اور کل 22 مارچ سن 2023 بروز بدھ تھا۔ روت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس پاکستان میں ہونا تھا اور ہوا، پشاور میں ہوا۔ روت ہلال کمیٹی نے آج چاند نظر آنے کا جو اعلان تھا خاصی تاخیر سے کیا۔ اس پر کچھ لوگوں نے جو ہے ایک عجیب و غریب سا معاملہ بنایا۔ کچھ لوگوں کی بات کر لیتے ہیں، نام آپ کے سامنے لے لیتے ہیں، فکر نہ کریں۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورۃ البقرہ آل عمران کی آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ اللہ کے دین کی رسی کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ ڈالو۔ واضح طور پر دو باتیں بار بار کہہ دیں کہ دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور تفرقہ نہیں ڈالنا، لوگوں کو خراب نہیں کرنا، لوگوں کو توڑنا نہیں ہے بلکہ جوڑنا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے 1500 سال پہلے، لیکن ہمارا طرز عمل اس وقت کیا ہے؟ ہمارے علماء اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کل تقریباً کوئی 10:15 بجے رات کو جو پاکستان کی روات ہلال کمیٹی تھی، انہوں نے اعلان کیا کہ چاند ہم نے دیکھ لیا ہے، یا ہمیں چاند کی شہادتیں مل گئی ہیں اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ کل پہلا روزہ ہوگا۔ اچھا، اب اس میں کچھ بھی مبہم نہیں تھا، کوئی چیز ابہام میں نہیں تھی، بالکل واضح اور کلیئر اعلان تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ اس اعلان کے بعد ایک موصوف حضرت اشرف آصف جلالی صاحب پریس کانفرنس فرماتے ہیں، لائیو تشریف لاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات انہوں نے یہ فرما دی کہ آج کا روزہ نفلی روزہ ہے، اس کو فرضی روزہ نہ کہا جائے، جس وجہ سے آج مجھے گفتگو کرنے کا زیادہ وہ ہوا۔ دو باتیں، ایک تو یہ کہ تفرقہ، دوسرے نمبر پر آج کے روزے کو نفلی روزہ قرار دے دیا، مختلف الٹے سیدھے خیر دلائل بھی دیے۔ آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، یا دین کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور لوگوں کو توڑ رہے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہمارا بیہیویئر کیا ہے؟ ہم جا کس طرف رہے ہیں اور لوگوں کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ صحیح نہیں ہے اور اعلان کمیٹی کا صحیح نہیں ہے، تو آپ کو اس کمیٹی کے اعلان سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود فرمایا کہ جی ہم نے مختلف شہروں میں اپنے نمائندگان مقرر کیے ہوئے تھے اور انہیں کوئی شہادت نہیں ملی تھی۔ جب آپ نے نمائندگان مقرر کیے ہوئے تھے اور انہیں کوئی شہادت نہیں ملی تھی، تو پھر آپ چپ کر کے کیوں بیٹھے تھے؟ آپ رات کو 8 بجے، 9 بجے، 9:30 بجے اعلان کر دیتے کہ جی ہم نے لوگوں کو مقرر کیا ہوا تھا، مختلف شہروں میں اپنے نمائندگان مقرر کیے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ چاند کہیں نظر نہیں آیا پورے ملک میں، لہذا کل روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن موصوف نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کمیٹی کے اعلان کا انتظار کیا تاکہ لوگوں میں تفرقہ ڈالا جائے۔
दूसरे नंबर पर आपको कमेटी बनाने की या लोगों को मुकर्रर करने की इजाजत किसने दी है? जब रियासत की एक कमेटी मौजूद है, स्टेट की एक कमेटी मौजूद है और उसमें आपके मसलक के लोग भी मौजूद हैं, तो फिर आप अलग कमेटी क्यों बनाते हैं? या तो उसके खिलाफ आप जाएं कि यह कमेटी दुरुस्त नहीं है, इसकी तश्कील दुरुस्त नहीं है, या जो इसके अंदर जो उलमा मौजूद हैं वो दुरुस्त नहीं है, हमें उन पर एतबार नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं, आपने कभी की नहीं किया, फिर आप उसकी मौजूदगी में एक और कमेटी क्यों बनाते हैं? तीसरे नंबर पर आप फरमाते हैं कि ये यौमुल शक है, यानी आप भी जो बात फरमा रहे हैं, हालांकि जो रुवत हिलाल कमेटी पाकिस्तान है उन्होंने कोई शक की बात नहीं की, आप ये फरमाते हैं कि यौमुल शक है। अगर आपकी कमेटी को वाज़ेह शहादतें नहीं मिली थी तो फिर आप इसको यौमुल शक क्यों कहते हैं? और आप फरमाते हैं कि अगर बाद में पता चल गया कि रोजा था तो आपका रोजा हो जाएगा, लेकिन अगर ना पता चला, अगर क्लियर ना हुआ तो फिर ये नफली रोजा हो जाएगा। अभी इसको फर्जी रोजा समझ के ना रखें, जबकि आप खुद कन्फर्म नहीं है। अपनी बात में आपने उसकी अपनी ही बात की खुद तरदीद कर दी। एक तरफ आप फरमाते हैं कि चांद नजर नहीं आया, कोई शहादत नहीं मिली, फिर यौमुल शक क्यों करार देते हैं? चौथे नंबर पर आप इरशाद फरमाते हैं कि जी इंडिया और बांग्लादेश में चांद नजर नहीं आया, लिहाजा हम क्यों माने, यहां कैसे नजर आ सकता है? तो भाई इंडिया और बांग्लादेश तो आपके पड़ोसी हैं, हालांकि बांग्लादेश की सरहद आपसे नहीं मिलती, और वो जो अफगानिस्तान है, ईरान है, चाइना है, तीनों का बॉर्डर आपसे मिलता है, और उन तीनों ममालिक में चांद नजर आ गया, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो मकसद क्या हुआ? पता क्या चला कि दर हकीकत आपका काम कोई पॉजिटिव काम नहीं है, आप कोई मुस्बत काम नहीं करना चाह रहे, बल्कि आपका काम नेगेटिविटी फैलाना है और आप तफरका डालना चाहते हैं। इसके अलावा आपका कोई एजेंडा नहीं है। लिहाजा लोगों के रोजे को खराब करना और यह कहना कि जी रोजा दुरुस्त नहीं है, यह इंतहाई काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस है। इसकी जितनी मजम्मत की जा सके करनी चाहिए और इस पैगाम को जहां तक मुमकिन हो सके पहुंचाना चाहिए, इसलिए ये आपका फरमाना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी बात में एक तो आपको अख्तियार नहीं था इसका, दूसरे नंबर पर आपकी अपनी बात में जो है कोई वाज़ेह वो नहीं है। एक तरफ आप फरमाते कि हमें चांद की कोई शहादत नहीं मिली, दूसरी तरफ आप फरमाते कि ये यौमुल शक है। तो आप तो खुद मशकूक हो, अपनी पोजीशन को आपने खुद खराब कर लिया। फिर एक पड़ोसी को आप मानते हैं जो नॉन मुस्लिम है, और वो जो दो पड़ोसी मुस्लिम हैं अफगानिस्तान और ईरान, उनको नहीं मानते। अच्छा, नॉन मुस्लिम का अगर ईमान अगर आपको ज्यादा अच्छा नजर आता है, फिर चाइना भी नॉन मुस्लिम है, फिर उसको मान लें। तो आपको दो पड़ोसी तो अच्छे लगते हैं, हालांकि उनमें से तो एक पड़ोसी है ही नहीं बांग्लादेश, उसकी तो बॉर्डर हमारे साथ मिलता ही नहीं है। लेकिन बहरहाल तो मकसद जो मैं समझा हूं, सिवाय लोगों को तोड़ने के, सिवाय लोगों में तफरका डालने के, इसके अलावा आपका कोई एजेंडा नहीं है, आपकी बात की कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अब आए थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज के चांद के ऊपर, जो कल चांद नजर आया है, इसकी साइंसी हैसियत को भी थोड़ा सा परख लेते हैं, देख लेते हैं। क्या आप कहेंगे जी मेरे पास क्या दलील है कि जी चांद दुरुस्त था? ये भी बात हो सकती है ना। तो मेरे पास दलाइल मौजूद हैं। पहली बात तो वही है कि हमारे पास जो एक बाकायदा रियासत का एक इदारा है, उसका वाज़ेह ऐलान है कि चांद नजर आया है। उसके ऐलान में कहीं इबहाम नहीं है, उसको उठा के देख लीजिए, अगर उसमें कहीं इबहाम नजर आता है मुझे बताइए। दूसरे नंबर पर जो साइंस को बहुत फॉलो करते हैं, साइंस को बहुत मानते हैं, तो महकमा मौसमियात पाकिस्तान ने 19 और 20 तारीख को वाज़ेह ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान में चांद की पैदाइश 21 मार्च सन 2023 बरोज मंगल रात 10:23 पर हो जाएगी, और 22 मार्च को चांद की उम्र इतनी होगी कि जिसे इंसानी आंख देख सकेगी। यह वाज़ेह ऐलान पहले से मौजूद है। काफी चैनल पर यह ऐलान, जियो पर, आज न्यूज पर, काफी टीवी चैनल पर यह ऐलान मैंने खुद सुना है। ठीक है, और यह ऐलान 19 और 20 मार्च को हुआ है।
2 दिन पहले हो गया, 3 दिन पहले हो गया था। इसका मतलब यह हुआ कि चांद इस काबिल था कि जिसे देखा जा सके। अच्छा, अब रही बात है कि मुल्क भर में मतला साफ नहीं था, तो ऐसा भी नहीं है, मुल्क भर में बहुत सारे इलाकों में मतला साफ था। बावलपुर से, रहीम यार खान से, कई जगहों से हमें खुद इतलात मिली थी कि मतला साफ है, और बावलपुर और रहीम यार खान का नाम भी आया है कि वहां चांद देखा गया है, बताया गया है वहां पर, ठीक है। तो लिहाजा चीज को बिला वजह शक में डालना, मशकूक करना, लोगों के दीन को खराब करना, लोगों के ईमान को खराब करना, लोगों के रोजे को खराब करना, रमजान को खराब करना, चीजों को मुतनाज़ा बनाना, तफरका डालना, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है, इंतहाई गलत है। लिहाजा हम इसकी सख्ती से तरदीद करते हैं। और मैं ये भी बता दूं आपको कि मेरा, अगरचे मैं ये मसलक इन चीजों को नहीं कोई ज्यादा वो करता, लेकिन बहरहाल मेरा अगर झुकाव किसी तरफ है तो वो मसलक अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी की तरफ ही है, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। लिहाजा जलाली साहब का ये ऐलान, उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काबिल मजम्मत है। आज के रोजे को मशकूक करार देना, नफली रोजा करार देना इंतहाई काबिल मजम्मत है। इसकी मजम्मत होनी चाहिए और बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। इसको आवाज को उठाना चाहिए, बात करनी चाहिए, और ऐसे लोगों पर कदगन होनी चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए कि ये लोग जो मुंह से नफरत के जो है वो अंगारे निकालते हैं, नफरत के कोयले बखेरते हैं, ऐसे लोगों के जबान बंदी होनी चाहिए। जो मुल्क को मजीद तोड़ने की तरफ और लोगों को लोग तोड़ने की तरफ लेके जा रहे हैं, लोगों को खराब करने की तरफ और लोगों के अंदर तफरका डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी सख्त मजम्मत होनी चाहिए। ठीक है, आज की गुफ्तगू का यही मौजू था। आगे रमजान का महीना मौजूद है, इंशाल्लाह रमजान के मौजू पर भी गुफ्तगू करेंगे, दुआ और जिक्र के मौजू पर भी गुफ्तगू जारी रहेगी। आपसे राब्ते का सिलसिला जो इसको उस्तवार किया है, कोशिश करेंगे दोबारा इसको जारी रखें। ठीक है, तो आज आपसे मुखातिब होने का, आपसे गुफ्तगू करने का मेन मकसद यही था कि अपने रोजे को खराब ना करें, रोजे को शक में ना डालें। हमारा रोजा बिल्कुल दुरुस्त रोजा है, हर एतबार से दुरुस्त रोजा है। लिहाजा इस तरह के लोगों की बातों को बिल्कुल अहमियत ना दें, बिल्कुल खातिर में ना लाएं। खा आदमी कहने वाला कोई भी हो, ये देखने के कह क्या रहा है और उसकी शरई हैसियत, साइंसी हैसियत क्या है, जो हर एतबार से दुरुस्त नहीं है, गलत है। ठीक है, इस्लाम कुरान हमें जहां अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का हुक्म देता है, वहीं उलिल अम्र, बादशाह जो वक्त या जो रियासत के कवानीन होते हैं उसको भी फॉलो करने का हुक्म देता है। वतीउल्लाह वतीउ रसूल पर बात को खत्म नहीं करता, बल्कि आगे वह उलिल अम्र को भी साथ लाता है। तो रियासत के बनाए हुए इदारे, रियासत के बनाए हुए जो लोग हैं, अगर वो दुरुस्त काम कर, हम ये नहीं कह रहे खुदा न खास्ता रियासत का सूदी निज़ाम है, हम उसकी कभी जो है हिमायत नहीं करते, और इस तरह की जो चीज़ें वो जो दीन के खिलाफ हैं, जो बिल्कुल दीन के मुनाफी चीज़ें खड़ी हुई हैं, उसकी हम कभी तायीद नहीं करते। लेकिन जो बहरहाल दीन के मुताबिक हैं, जिसमें कोई इबहाम नहीं है, जिसमें कोई शक वाली बात नहीं है, उसको मशकूक करना, उसको खराब करना, लोगों में तफरका डालने वाली बात है, लोगों को तोड़ने वाली बात है, और ऐसी चीज़ों की शदीद मजम्मत होनी चाहिए। एक बार फिर यही कहूंगा कि आज का रोजा बिल्कुल दुरुस्त रोजा था, इसमें किसी किस्म की शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का ये रोजा और आने वाले तमाम रोजे कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।